children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, Story of Garbage. Learning objectives. Types of waste, management of wastage, the 3 R's of waste disposal, recycling of paper, plastic, a threat for our environment. To protect our environment, it is very important to reduce waste, manage it properly and maximize recycling. Waste is any substance or material that has been used but is not wanted anymore. This is either because it is worn out, broken or no longer has any purpose. We generate waste all the time. Leftover from food, kitchen wastage, office wastage, wastage from hospitals, railway stations, etc. if thrown around can cause soil, air or water pollution. They are a big threat to normal life. Plants, animals and human beings and have an impact on all ecosystems. However, most of us do not know where our garbage goes. देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, चाहते नहीं बल्कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट ही करना है, तो उसको करने के लिए हमें वेस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज करनी पड़ेगी रिसाइकलिंग. देखिए, हम डेली बहुत सारा जो वेस्ट है, गार्बेज है, वो जनरेट करते हैं. ठीक है, हमारा जो लेफ्ट ओवर फूड होता है किचन का, आपका किचन वेस्ट है, ऑफिस वेस्ट है, हॉस्पिटल्स का, रेलवे स्टेशन का, बहुत सारा आपका गार्बेज है ना. तो ये नॉर्मल लाइफ के लिए, प्लांट्स एनिमल्स के लिए बहुत ही बिग थ्रेट है. एंड ज़्यादातर हम में से किसी को भी नहीं पता कि ये जो गार्बेज है ये जाता कहाँ है. टाइप्स ऑफ वेस्टेज. There are many types of waste. There is liquid waste in our drains. There are gases hiding in the air like pollutants from factories. And there is solid waste, garbage we put in our waste bins. Things or objects which are no longer of any use to us is known as garbage. Garbage is divided into 2 categories, biodegradable waste and non-biodegradable waste. अच्छा देखिए, वेस्ट आपके लिक्विड फॉर्म में होता है जो हमारी नालियों में होता है, ड्रेन्स में. गैसेस जो हमें दिखता नहीं है, लाइक आपका जो पोल्यूटेंट्स है जो फैक्ट्री से निकलता है, व्हीकल से आपका स्मोक निकलता है. सॉलिड वेस्ट, गार्बेज जो हम अपने वेस्ट या डस्टबिन में डालते हैं. तो आपके जो गार्बेज है वो 2 टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. Biodegradable waste. The term biodegradable is used for those things that can be easily decomposed by natural agents like water, oxygen, ultraviolet rays of the sun, and microorganisms, etc. These wastes generally come from living matter. These wastes rot after some time and cannot be recycled. Biodegradable waste includes vegetable and fruit peels, leftover food and garden waste like grass, leaves, weeds, and twigs. बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि जिसे ईजिली डिकम्पोज किया जा सकता है बाय नेचुरल एजेंट्स, लाइक आपका वाटर है, ऑक्सीजन है या अल्ट्रावायलेट रेज है या फिर आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. ओके, तो ये वेस्ट रॉट हो जाता है कुछ टाइम के बाद और इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता. इसमें आपका लेफ्ट ओवर फूड आता है, आपका गार्डन वेस्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट की पील्स. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज और ड्राई वेस्टेज, those materials which cannot be broken down or decomposed into the soil by microorganisms and natural agents are labeled as non-biodegradable. These substances consist of plastic materials, metal scraps, aluminium and glass cans and bottles, etc. वो materials जो आपके डिकम्पोज नहीं होते सॉइल में बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो आपके नेचुरल एजेंट्स हैं उनके द्वारा, तो उन्हें कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. ये सब्सटेंस में आपके प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, मेटल स्क्रैप्स होते हैं, एल्यूमिनियम, ग्लास कैन या बॉटल्स होते हैं. दे आर जनरली recycled or reused. Such wastes are not dumped into soil. These are sent to recycling units so that they can be recycled. तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको जनरली रिसाइकिल या रीयूज किया जाता है, इनको सॉइल में डंप नहीं किया जाता. मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज. Considering the danger caused by pollution and the wasteful use of natural resources, it is essential for us to make a sincere effort towards environmental conservation. This involves a control on pollution at all levels, an effort to reduce domestic and industrial wastage, and development of effective waste management. Waste management includes collection, transport, processing, and disposal of wastage materials. We should adopt a few methods for effective waste disposal to keep our environment clean and free of diseases. These methods include segregation, landfilling, composting, vermicomposting, reduce, reuse and recycle 3 R's. ओके, अब देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है पोल्यूशन का, क्योंकि गार्बेज की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है. ओके, हमारा जो क्या है आपका ये वेस्टफुल यूज़ है हमारे नेचुरल रिसोर्स.
ओके तो अब हम इसे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि हम जो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रिड्यूस कर दें। ओके तो वेस्ट मैनेजमेंट में आपका होता है कि कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग एंड वेस्ट का डिस्पोजल। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं। सो ये जो आपके मेथड्स हैं इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट को हम मैनेज कर सकते हैं। Segregation of wastes. There are two types of dustbin provided by municipality at public places such as hospitals, bus stands, etc. These dustbins are put side by side but they are of different colors, generally blue and green. The blue colored bins are used for throwing non-biodegradable wastes, whereas the green color bins are used for throwing biodegradable wastes. According to solid waste management, every household should segregate and store the waste generated by them in 3 separate streams, namely biodegradable, non-biodegradable and domestic hazardous waste. अच्छा, आपने डस्टबिन, ये दो तरह के डस्टबिन आपने देखे होंगे, ब्लू एंड ग्रीन। तो जनरली ये जो म्यूनिसिपैलिटी है वो पब्लिक प्लेसेस पे इनको रखते हैं, जैसे आपके हॉस्पिटल्स में या बस स्टैंड्स पे। अब इनके दो अलग अलग कलर्स होते हैं। आपका जो ब्लू कलर्ड होता है ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है, जबकि जो ग्रीन होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होता है। ओके तो अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, उनके अकॉर्डिंग एवरी हाउस होल्ड, मतलब हर किसी को अपना जो गार्बेज उसको सेग्रीगेट करना चाहिए 3 सेपरेट स्ट्रीम्स में, यानी कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस मतलब जो बहुत ही डेंजरस है। वेस्ट इज जनरेटेड फ्रॉम होम्स एंड ऑफिसेज should be segregated daily into biodegradable and non-biodegradable wastes before their disposal. The biodegradable wastes such as food, leftover fruit and vegetable peels, leaves, paper, jute, etc. should be collected in green bins kept for biodegradable waste, whereas non-biodegradable waste such as polythene bags, plastics, aluminium cans, etc. should be put in blue bins. ओके अब जो वेस्ट आपके घरों में, ऑफिस से जनरेट हो रहा है उनको भी सेग्रीगेट करना चाहिए 2 अलग अलग बिन्स में। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको ग्रीन बिन में डालना चाहिए, जैसे कि वेजिटेबल पील है, फ्रूट पील है, पेपर, जूट एक्सेट्रा। एंड ब्लू बिन में आपको डालना नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स है, एल्यूमिनियम कैंस है या फिर ग्लास है। There should be a separate bin kept for domestic hazardous waste such as discarded paint, drums, pesticides, cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes, and contaminated gas, etc. generated at the household level. अच्छा, इसके अलावा एक सेपरेट बिन और होना चाहिए जो हार्मफुल वेस्ट के लिए होना चाहिए, जैसे कि आपका डिस्कार्डेड पेंट ड्रम्स हो गए, पेस्टिसाइड के कैंस हो गए, CFL बल्ब हो गए, आपके ट्यूब लाइट्स हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं, ब्रोकन मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स हैं, यूज बैटरीज हैं, राइट। Waste items that can be recycled should be kept aside to be sold to kabadi walas. These wastes include newspapers, carry bags, oil cans, metal scraps, etc. Segregation of waste is also done by rag pickers in India. अब जो वेस्ट आइटम्स हैं जो आपका रिसाइकिल हो सकता है उसको साइड करके वो कबाड़ी वाले को सेल कर देना चाहिए। तो जो सेग्रीगेशन है वेस्ट का ये रैग पिकर्स भी करते हैं इंडिया में। लैंडफिलिंग इज अ मेथड in which waste are dumped into naturally occurring or man-made pits. लैंडफिलिंग एक मेथड है जिसमें वेस्ट को डंप किया जाता है किसी नेचुरली अकरिंग या मैन-मेड पिट्स में। or low-lying areas of land and covered with soil. These areas are generally outside the main city. या फिर ये low-lying areas होते हैं land के और soil से covered होते हैं और ये generally main city से दूर होते हैं. These large pieces of land are called landfills. Garbage buried inside landfills remain here for a long time as they decompose very slowly and become manure. These places can be converted into parks, gardens, etc. However, landfills have a major disadvantage. They are full of pests like flies, cockroaches and mosquitoes. Slowly the number of these pests increase and they spread harmful diseases in nearby regions. Sometimes there are fires in the open dump when waste such as chip packets, burns, unhealthy chemical pollute the ecosystem. These chemicals are present in the air we breathe. The leftover ash from burning waste pollutes the soil. अब ये जो लार्ज पीसेस होते हैं लैंड के लैंडफिल्स कहा जाता है. गार्बेज को बैरी किया जाता है लैंडफिल्स के अंदर और यहाँ पे लंबे समय तक रहते हैं क्योंकि धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं और फिर ये मेन्यूर में कन्वर्ट हो जाते हैं. फिर इन एरियाज़ को, इन प्लेसेस को या लैंडफिल्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है पार्क्स में या गार्डन्स में. हालांकि लैंडफिल्स का एक डिसएडवांटेज भी है. सबसे पहले तो यहाँ पे फ्लाइज, मस्कीटोज़ और आपके कॉकरोचेस आपके यहाँ पे ब्रीड करना शुरू कर देते हैं. इनकी
नंबर इंक्रीज हो जाता है, फिर हार्मफुल डिसीज़ फैलाते हैं आसपास के एरिया में। और कई बार क्या होता है कि फायर लग जाती है ओपन डंप्स में, तो जैसे कि वेस्ट है, जैसे कि चिप्स के पैकेट है, वो बर्न होते हैं, तो जो अनहेल्दी केमिकल होता है वो इकोसिस्टम को पोल्यूट करता है। और ये जो केमिकल्स जो एयर में होंगे फिर हम उसे ब्रीथ करेंगे, और जो लेफ्ट ओवर ऐश होता है जो बर्निंग वेस्ट से निकलता है वो सॉइल को पोल्यूट करता है। डू यू नो Gazipur landfill site in New Delhi is 65 meters tall, which is just 8 meters less than the height of Qutub Minar. जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है न्यू दिल्ली में, उसकी हाइट है 65 मीटर, यानी वो कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर छोटा है। Composting. The process of degradation of organic waste is into manure by the action of microorganisms is called composting. The manure thus obtained becomes natural fertilizer for the plants as well as increases the soil fertility. Organic waste can be recycled by the method of composting. It is the natural process of decomposition of waste by microorganisms that yields manure or compost which is very rich in plant nutrients. देखिए जो प्रोसेस है जिसमें आपका ऑर्गेनिक वेस्ट का डिग्रेडेशन होता है मेन्योर में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो मेन्योर जो इसके बाद आपका आप ऑब्टेन करते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है प्लांट्स के लिए, और सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है। और ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो आपका कंपोस्टिंग के मेथड से रिसाइकिल पे हो जाता है। Benefits of composting. Composting ensures that the waste that is produced in the kitchen is not carelessly thrown and left to rot. It recycles plant nutrients and returns them to the soil. Apart from being clean, cheap and safe, composting can significantly reduce the amount of disposable garbage. The organic fertilizers are better than chemical fertilizers, especially when used for vegetables. It also increases the water holding capacity of the soil and makes the soil easy to cultivate. अब देखिए कंपोस्टिंग क्या करता है कि वो इंश्योर करता है कि जो आपका किचन में वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है वो केयरलेसली उसको नहीं फेंका जा रहा है, ना ही वो रॉट हो रहा है। ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है एंड देन वो सॉइल में वो रिटर्न हो जाते हैं। इसके अलावा क्लीन, चीप और सेफ होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, ये डिस्पोजेबल गार्बेज के अमाउंट को भी रिड्यूस करते हैं। और आपको पता है ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर से बेटर होते हैं, स्पेशली जब आपके वेजिटेबल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, उसको भी इंक्रीज करते हैं एंड मेक द सॉइल इजी टू कल्टिवेट। Vermicomposting. Composting can also be done with the help of worms. This type of composting is called vermicomposting. Red worms are usually used for vermicomposting. अब vermicomposting यानी composting जो worms की help से की जाती है, ओके तो vermicomposting में red worms का यूज किया जाता है। The worms are kept in a vermicomposting pit and fed biodegradable waste. जो रेड वर्म्स हैं उनको वर्मी कंपोस्टिंग पिट में डाला जाता है एंड दे फीड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दे कन्वर्ट वेस्ट इनटू मैन्योर। अ वर्मी कंपोस्टिंग पिट इज मेड बाय डिगिंग अ पिट इन द ग्राउंड। अ लेयर ऑफ सैंड इज पुट एट द बेस ऑफ द पिट एंड देन द सैंड इज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, वीड्स एंड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स। वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द पिट टू कीप इट मॉइस्ट। Worms are added to the pit and fed vegetable peels, dry leaves, crushed egg shells and weeds. The manure thus obtained is excellent for growing plants. Animal products such as meat waste, milk waste and oil lead to the growth of harmful microorganisms and these should not be added to the pit. Let us create some vermicompost on our own. अब देखिए जो आपके रेड वर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट को मेन्योर में कन्वर्ट करते हैं। ओके वर्मी कंपोस्टिंग पिट को बनाया जाता है कि एक पिट डिग किया जाता है ग्राउंड में, फिर एक लेयर होती है सेंड की, उसको बेस में डाला जाता है पिट के एंड देन सेंड को कवर किया जाता है ड्राई लीव्स, वीड्स एंड जो प्लांट के स्टॉक होते हैं। फिर वाटर स्प्रिंकल किया जाता है इस पिट में जिससे कि वो मॉइस्ट रहे। फिर वर्म्स को ऐड किया जाता है पिट में एंड दे फिड वेजिटेबल पील्स, ड्राई लीव्स, क्रश्ड एग सेल्स या वीड्स। फिर मेन्यूर जो आपकी मिलता है वहाँ से ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एनिमल प्रोडक्ट जैसे कि मीट वेस्ट या मिल्क वेस्ट या ऑयल है, इससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए इनको पिट में ऐड नहीं करना चाहिए। Activity 1. Dig a pot for about 1 feet depth in the backyard or garden of your home or school. Fill the pit by bio-waste, paper and food wastage and place few earthworms in it. Sprinkle water and close the place with jute or cardboard and ensure moisture all the time. After 45 days, the vermicompost casting layer formed just above the pit. These compost can be applied to the plant which contains water-soluble nutrients. This type of compost helps in plant growth as well as maintains the fertility of the land. देखिए आपको एक पिट डिग करना है लगभग 1 फीट आपके बैकयार्ड में या गार्डन आपका घर या स्कूल में।
आपको पिट को फिल करना है बाय बायो वेस्ट, पेपर एंड फूड वेस्ट से, और उसमें आपने क्या करना है, कुछ अर्थ वर्म्स डालने हैं। देन वाटर स्प्रिंकल करना है, उसको जूट या फिर कार्डबोर्ड से क्लोज कर देना है, एंड वहाँ पे मेक श्योर कि मॉइस्चर रहे हमेशा। 45 डेज़ के बाद आप देखेंगे जो वर्मी कंपोस्ट कास्टिंग लेयर होगी वो जस्ट अबव बनेगी आपके पिट की। फिर इस कंपोस्ट को आप प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इस तरह की जो कंपोस्ट होती है ये प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं, और इसके अलावा लैंड की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं। द 3 R's of waste disposal. In addition to landfills in compost making, there are different waste management options that depend on judicious use of waste. These include methods such as reduce, reuse and recycling. अच्छा, अब लैंडफिल्स की हमने बात की, कंपोस्ट मेकिंग हमने बात की, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट मेथड हैं जिसमें आपका आता है 3 R's। 3 R's क्या है? सबसे पहले है रिड्यूस। In this method, efforts are made to teach the community to generate less waste by using efficient housekeeping methods, changing wasteful habits and adopting lifestyles with a positive attitude towards conservation. We should reduce the use of goods that add to non-biodegradable waste. We can reduce the waste by using durable goods that last longer instead of things that are used once and thrown away. Reduce मतलब हमें जो हम गार्बेज जनरेट कर रहे हैं उसे कम करना है, हमें ऐसे एफर्ट्स करने हैं कि हम अपने गार्बेज को जो हम जनरेट कर रहे हैं डेली बेसिस पे हम उसे कम कर सकें। ओके, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे आइटम्स आप खरीदिए, ऐसे गुड्स, ऐसा सामान खरीदिए जो आपका लंबे टाइम तक रहे, ड्यूरेबल जो हो, और ऐसा ना खरीदे कि जैसे आपने खरीदा और उसको फिर थोड़े टाइम के बाद उसे फेंक दिया। वेस्ट टू रिड्यूस वेस्ट, ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट यू नीड बिफोर बाइंग। खरीदने से पहले आप ये सोचें कि आपको किसकी ज़रूरत है। Carry jute or cloth bag while shopping. At work, reduce the use of harmful and non-recyclable products. Print on both sides of a paper to cut waste output in half. Write on both sides of paper. Instead of unnecessary printing, use electronic facilities. Share newspapers, magazines and other things with others. जूट और क्लोथ बैग को कैरी करें जब कभी भी आप शॉपिंग के लिए जाएं काम, और जब अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो आप हार्मफुल और नॉन रिसाइक्लेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कम कर दें। पेपर के जो प्रिंट्स होते हैं बोथ साइड्स में, उसको आप क्या करेंगे, उसको कट कर दें जिससे कि जो वेस्ट आउटपुट है वो हाफ हो जाएगा। पेपर के दोनों साइड लिखिए। अननेसेसरी प्रिंटिंग के बजाय आप इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज़ का यूज़ करें। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और दूसरी चीज़ें आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। Reuse. Reuse means using a thing again and again rather than using and throwing after a single use. The best way to support reuse of material is to give them to those who can use them. Reuse यानी किसी भी चीज़ को बार बार आप उसे यूज़ करें instead of throwing after a single use. Waste to reuse waste. Instead of using plastic bags, use and throw pens and batteries. Use cloth bags, fountain pens and rechargeable batteries. Reuse glass bottles for other purposes. Repair footwears and use them. Old clothes may be given to charitable organizations. Paper from old exercise books may be made into scribble pads and given to poor school children. Old plates, dishes and furniture etc. may be given to those who need them or cannot afford to buy new items. In addition, empty plastic bottles of soft drinks can be used to store water and liquids at home. Plastic bags खरीदने की बजाय, या आपके जो यूज़ एंड थ्रो पेन्स होते हैं, बैटरीज होते हैं, उनकी बजाय आप क्या करें, क्लोथ बैग को यूज़ करें, फाउंटेन पेन को यूज़ करें, रिचार्जेबल बैटरीज को यूज़ करें, ग्लास बॉटल्स को रीयूज़ करें दूसरे पर्पसेस के लिए, फुटवेयर्स को रिपेयर करें, ओल्ड क्लोथ, आपके जो पुराने कपड़े हो चुके हैं किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर दें, और आपका जो पेपर है आपकी ओल्ड एक्सरसाइज बुक में से, उससे क्या कर सकते हैं आप उसको स्क्रिबल पैड्स बना सकते हैं, या फिर उन बच्चों को दे सकते हैं जो गरीब हों। ओल्ड प्लेट या डिशेज या फर्नीचर ऐसे लोगों को डोनेट कर दें जो अफोर्ड नहीं कर सकते नया चीज़ खरीदना। एंड इसके अलावा जो आपकी जो एम्प्टी बॉटल्स होती हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, उनको आप यूज़ कर सकते हैं पानी स्टोर करने के लिए या लिक्विड स्टोर करने के लिए। Recycling. The process by which waste materials are used to make new product is called recycling. Anything made from metal, wood, paper and glass can be recycled. We should try to separate biodegradable and non-biodegradable wastes and throw them in their respective bins. This will help in recycling such non-biodegradable waste. Recycling involves conversion of used and discarded materials into new useful products. It reduces the amount of waste, thereby making the environment cleaner. Most of the garbage generated in the household can be recycled and reused.
Old newspapers, magazines, and bottles can be sold to the kabadiwala, the man who buys these items from homes. In your own home, you can contribute to waste recycling by using old calendars to cover books and making attractive containers out of old cans and bottles. देखिए, रिसाइकलिंग का मतलब है इसमें आप जो वेस्ट मटेरियल्स हैं आप उनसे एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. कोई भी चीज़ जो आपका मेटल, वुड, पेपर या ग्लास से है वो रिसाइकिल हो सकता है. तो हमें क्या करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करना चाहिए और उनको रेस्पेक्टिव बिन्स में ही थ्रो करना चाहिए. इससे हमें हेल्प मिल जाएगी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो आपका रिसाइकिल हो जाएगा. ओके तो जो आपका ज़्यादातर जो गार्बेज आपका जनरेट होता है हाउस होल्ड में उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं. जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं या ओल्ड नोटबुक्स हैं जो यूज हो चुकी हैं, आप उन्हें कबाड़ी वाला को सोल्ड कर सकते हैं. ओके और आपके घर में आप क्या कर सकते हैं, वेस्ट रिसाइकलिंग को आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे कि ओल्ड कैलेंडर्स हैं उससे बुक्स को कवर कर सकते हैं और अट्रैक्टिव जो आपके जो ओल्ड कैंस या बॉटल्स हैं उसे अट्रैक्टिव कंटेनर्स बना सकते हैं. Advantages of waste recycling, it leads to less utilization of raw materials. Of course, recycling होगा तो जो raw materials का utilization कम होगा. Makes the surroundings cleaner and healthier, saves on landfill space, saves money, reduces the amount of energy required to manufacture new products. हमारा सराउंडिंग क्लीनर और हेल्दियर होगा, लैंडफिल का स्पेस बचेगा, हमारा मनी भी सेव होगा एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. Recycling paper. The most common thing that is recycled is paper. Paper is made from woods of trees. In order to save trees and reduce the pile of waste, paper is regularly recycled. How to recycle paper? Collect some old newspapers, magazines, torn sheet, etc. and tear them into small pieces. Soak these pieces of paper in water and leave it for a day. Now press the soaked paper and make it into a thick paste. Spread this paste uniformly on a net or a sieve. This will remove unnecessary water from the paste. Remove extra water on top of the paste with the help of an old cloth or newspaper. Now remove this paste carefully and spread it under the sun to dry. Your recycled paper is ready for use. देखिए आप पेपर कैसे रिसाइकिल करेंगे, आप जितने भी पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या टॉर्न शीट्स हैं आप उनको छोटे छोटे पीसेस में टियर करेंगे. इन पीसेस को आप पानी में डुबो के रखेंगे पूरे दिन के लिए. फिर आपने सोक पेपर को प्रेस करना है और इसको एक थिक पेस्ट बनाना है. फिर इस पेस्ट को यूनिफॉर्मली इवनली एक नेट या सीव पे आपने स्प्रेड करना है. इससे जितना भी जो अननेसेसरी वाटर होगा इसमें से निकल आएगा. फिर एक्स्ट्रा जो वाटर है वो आप निकालेंगे ऑन द टॉप ऑफ द पेस्ट आप किसी ओल्ड क्लॉथ या न्यूज़पेपर की हेल्प से. फिर आपने इस पेस्ट को केयरफुली रिमूव करना है, स्प्रेड करना है आपने और आपको सन में से ड्राई होने देंगे एंड आपका जो रिसाइकल पेपर है ये रेडी हो जाएगा. प्लास्टिक अ थ्रेट फॉर एनवायरमेंट. वी यूज मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ मेड आउट ऑफ प्लास्टिक बैग्स, water bottles, mugs, buckets, toothbrushes, cups, plates, pens, chairs, and electric switches. Plastics were invented to make our life convenient, but overuse of plastic has become a big threat for our environment. Most items made of plastic cannot be recycled and they do not decompose when buried in soil. Burning of plastic emits extremely poisonous gases, which if inhaled can cause lung diseases. देखिए हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक से बनी हैं. बहुत सारी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारी प्लास्टिक से बनी है, लाइक बॉटल्स, मग्स, बकेट्स, टूथब्रशेस, कप्स, प्लेट्स, पेन एक्सेट्रा. प्लास्टिक को इन्वेंट किया गया था ताकि हमारी लाइफ कन्वीनियंट हो सके, बट इसका ओवर यूज़ करने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है. ज़्यादातर जो प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता और ना ही ये डिकम्पोज होता है जब इसको हम सॉइल में बेरी करेंगे, और इसको अगर जलाएंगे तो इसमें से पॉइजनस गैस निकलेगी और अगर आपने इसे इनहेल कर दिया तो लंग डिसीज होने के चांसेस हैं. Menace caused by plastic. Polythene or plastic bags are thrown carelessly everywhere. These polythene bags clog the soil and affect its fertility. They get into the drains and accumulate there. Because of this accumulation, the drains are choked and sewage system gets damaged. Polythene containing the garbage are responsible for the death of stray animals, especially cattle. Cattle eat the leftover food and edible waste along with the polythene bags that accumulate in their stomach, causing death by choking their alimentary canal. आपके जो पॉलीथीन या जो प्लास्टिक बैग्स हैं आप यहाँ वहाँ केयरलेसली फेंक देते हैं, तो ये पॉलीथीन बैग्स क्या करते हैं कि सॉइल को क्लॉग कर देते हैं, उसकी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं. अगर ये ड्रेन में चले जाएँ तो वहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसकी वजह से ड्रेन चोक हो जाती है, सीवर जो सीवेज सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है. पॉलीथीन में
जो आपका गार्बेज होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रे एनिमल्स की डेथ के लिए, क्योंकि जैसे लेफ्ट ओवर फूड लोग पॉलीथीन में डाल के फेंक देते हैं, तो जो एनिमल्स होते हैं वो खाने के साथ साथ प्लास्टिक को भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से चोकिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. Burning of plastic bag generates toxic gases which may cause many health problems including cancer. Plastic dumped in water bodies cause death of many aquatic animals such as fish, turtle and other animals. प्लास्टिक बैग्स को अगर बर्न किया जाता है उसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलती है, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है इंक्लूडिंग कैंसर. और अगर वाटर बॉडीज़ में डंप करेंगे तो इसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे फिश, टर्टल या जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी भी डेथ हो जाती है. Polythene bags collected by rag pickers are reused after washing that can be health hazard. अच्छा, अब जो पॉलीथीन बैग जो रैक पिकर्स कलेक्ट करते हैं और उनको धोने के बाद उसको रीयूज़ करते हैं, वो भी आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकते हैं. Ways to minimize the overuse of plastics. Reuse plastic carry bags for shopping. Carry your own cloth bag or jute bag when you go out for shopping. Use paper bags wherever possible. Reuse plastic containers to store water, spices and sugar in the kitchen. Donate old plastic toys instead of throwing them away. देखिए, आप ओवर यूज जो है प्लास्टिक का किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं. सबसे पहले तो प्लास्टिक कैरी बैग्स को रीयूज कर सकते हैं शॉपिंग के लिए. जब कभी भी शॉपिंग के लिए जाएं अपना क्लोथ बैग या जूट बैग लेके जाएं. पेपर बैग्स को यूज़ करें जहाँ भी पॉसिबल हो. एंड प्लास्टिक कंटेनर्स को आप रीयूज़ कर सकते हैं जैसे सॉल्ट, स्पाइसेस या शुगर को स्टोर करने के लिए. ओल्ड प्लास्टिक टॉयज जो है उनको फेंकने की बजाय किसी को डोनेट कर दें. Learning outcomes. There has been an increase in pile of garbage. Garbage is classified as biodegradable and non-biodegradable. Use green and blue bins to throw biodegradable and non-biodegradable wastage respectively. Biodegradable waste is dumped in landfills or used to form compost or vermicompost. We should not burn garbage. Non-biodegradable waste can be reduced by following 3R principle in use of such things. Paper should be recycled. Things made of plastics are a big threat for our environment. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and I hope आप गार्बेज को रिड्यूस करने में अपने एफर्ट्स डालेंगे. एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.